हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. Petitioner has approached this court challenging the order dated 16/3/2018 in bracket annexure P5 bracket out passed by the Joint Director Vigilance Bureau Headquarters Punjab, whereby the information sought by the petitioner has been denied on the basis of section 8 in bracket 1 bracket out in bracket h bracket out of the Right to Information Act 2005, order dated 26/4/2018 in bracket annexure P7 bracket out passed by the Director cum First Appellate Authority Vigilance Bureau Headquarters Punjab, respondent number 3, and order dated 30/10/2018 in bracket annexure P9 bracket out passed by the Chief Information Commissioner Punjab, respondent number 2, whereby the appeals preferred by the petitioner against the order passed by the Public Information Officer stand rejected, full stop para. It is the contention of the learned counsel for the petitioner that the reasons have to be assigned by the Public Information Officer as to why the information has not been supplied to the petitioner as has been sought by him, bringing it within the exception of section 8 in bracket 1 bracket out in bracket h bracket out of the Right to Information Act, full stop. He contends that since no reasons whatsoever have been assigned by the respondents, it cannot be said that it would fulfill the mandate of the Right to Information Act, which would bar supply of information to the petitioner, full stop. His further contention is that the reason which has been assigned, if any, is merely on the plea that the prosecution would be hampered as the case is pending in the court after the submission of the charge sheet against the petitioner, full stop. He thus contends that the orders passed by the authorities below cannot sustain, full stop. I support of his contention. He has placed reliance upon a judgment of the Delhi High Court in Bhagat Singh versus Chief Information Commissioner 2008 in bracket 146 bracket out DLT 385, as also a judgment passed by the Central Information Commission in complaint number titled as Justice R.N. Mishra in bracket retired bracket out versus Nirbhay Kumar, full stop para. I have considered the submissions made by the learned counsel for the petitioner and with his assistance have gone through the impugned orders, full stop para. A perusal of the file would indicate that the authorities had intimated the petitioner the reason as to why the information cannot be supplied to him and would fall within the ambit of section 8 in bracket 1 bracket out in bracket h bracket out of the Right to Information Act 2005, full stop. It is an admitted case that FIR number 11
dated 2/8/2017 was registered at Police Station Vigilance Bureau Bhatinda, wherein charge sheet has been filed against the petitioner. After the investigation, the prosecution in the case is continuing in the court, full stop. The information which is being sought by the petitioner is directly relatable to the prosecution of the case, and therefore, since it is likely to hamper the prosecution, the information has been denied to the petitioner, full stop. Para. In the considered view of this court, the plea as has been taken with regard to the applicability to section 8 in bracket 1 bracket out in bracket h bracket out full stop. तो दोस्तों ये 90 की स्पीड में हो गया है. एक जगह आया है लास्ट में इन द कंसीडर्ड व्यू ऑफ दिस कोर्ट, यहाँ शायद गलत छपा हुआ है, यहाँ द नहीं होना चाहिए. और एक जगह पूरा का पूरा कंप्लेंट नंबर आई है तो हमने वो मिस कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो बड़ा नंबर था तो हमने उसके आगे कर दिया है. कंप्लेंट नंबर के बाद टाइटल्ड है. ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं है, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ठीक, चलिए तो फिर क्या करते हैं. इसमें नाम कुछ आया हुआ है ना, नाम आया हुआ है भगत सिंह आया हुआ है. तो भगत के लिए क्या करिए कि बी बनाइए, गे को हाफ कर दीजिए. ठीक है, बी को काट दीजिएगा अबव द लाइन, या फिर बी गे और टी दोनों बनाइए, मतलब तीनों बनाइए. भगत सिंह. निर्भय के लिए क्या करिए, नियर बनता है ना ऑन द लाइन, नियर बना के बी बना दीजिए और बी को काट दीजिए. ठीक है, आई वाई की वॉवल लगा दीजिए, आई की, निर्भय हो जाएगा. मिश्रा जी तो जानते हैं आप, थ्रो द लाइन एम, सर्किल अपवर्ड आर. ठीक है, और दैट की वॉवल मिश्रा. कुमार भी जानते हैं आप. भटिंडा, भटिंडा देखिए पूरा बनेगा बी टी एन डी. एन चाहें तो एन का हुक लगा सकते हैं, लेकिन एन जो भी आपको सूटेबल पड़े, स्ट्रोक या एन का हुक आप दोनों लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो भटिंडा भी हो गए और कुछ नहीं है ना. तो चलिए ये तो हो गया. आज बहुत लेट हो गया, डिक्टेशन डाल नहीं पाए, कुछ ज़्यादा बिजी हो गए थे जिसकी वजह से डिले हो गया. आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत हो गई होगी. चलिए इसीलिए रात में हमने डाल दिया. हमने कहा कि जब तक डाल सकते हैं तब तक तो डालते ही रहें. तो चलिए कमेंट्स देख लेते हैं. कमेंट सेक्शन में कि कोई नीरज शर्मा जी हैं, 60 की स्पीड है अभी उनकी, एग्ज़ाम तक 100 कैसे करूं, हो जाएगी, बस लगे रहिए. ठीक है, परेशान मत होइए, रेगुलर का काम है ये. इसको डेली अगर आप करोगे बिना फ्रस्ट्रेट हुए तभी इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन होगा ज़रूर, इसकी गारंटी हम दे रहे हैं. ठीक है, तो सर डेली 2 डिक्टेशन अपलोड, देखिए बहुत इम्पॉसिबल सा हमारे लिए हो जाता है 2 डिक्टेशन, इसीलिए हम एक ही डिक्टेशन डाल पाते हैं. इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, कोशिश हम करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए माफ़ कीजिए. और आप सबको वेलकम. आपने जिन्हें जिन्हें थैंक्स कहा है. प्रवीण कुमार जी की 6 मिस्टेक आ रही हैं, बहुत अच्छी है, इसको बना के चलिए. एग्ज़ाम की डेट निकलने वाली है, बस इंतज़ार ख़त्म हुआ. सर अलोंग विद 1 वर्ड और नॉट, अलोंग विद देखिए अलग अलग वर्ड है ये, अप टू और उन सब की तरीके भी, इसमें भी कन्फ्यूजन है. पता नहीं कैसे चलन चल गया है. कोर्ट्स की के जजमेंट जो आते हैं उसमें दोनों को एक जैसा एक साथ कर देते हैं, जबकि इसको अलग अलग होना चाहिए. अलोंग विथ, ठीक है, अलग करो चाहे एक साथ करो, दोनों का मीनिंग एक ही है. ठीक है, लेकिन इसको अलग अलग लिखना ज़्यादा सूटेबल है. ठीक है, और थैंक यू. एक वोटिंग करवाई थी, बहुत सारे लोगों ने वोट तो नहीं किया, लेकिन जितनों ने किया उनको पसंद आ रहा है हमारी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए तो जी बिल्कुल सूरज जी वेलकम. और एपीएस की टाइपिंग स्पीड मेरी 30-35 जा रही है विद एक्यूरेसी 95/96 जजमेंट. क्या हो सकता है, देखिए जजमेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट केसेस का जो फर्स्ट पेज होता है ना, वही उस जजमेंट की ही प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है, उससे रिलेटेड ही आएगा. जो सुप्रीम कोर्ट केसेस की फर्स्ट पेज जो होता है ना, उसमें सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट अलाइनमेंट,
और बोल्ड इटैलिक होता है, ठीक है, डबल डैशेस होते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, उनको आप देख के कॉपी करो, उसी को टाइप करो, उसी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और क्या कहते हैं कि कृपया तो बजरंग, कृपा तो भगवान की है, बजरंग बली की है, हम कौन होते हैं देने वाले। बस आप, हमारी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। और आपको भी वेलकम, जिन्होंने थैंक यू, जिनने जिनने कहा है, आपको हमारा काम अच्छा लगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नवदीप सिंह जी की 6 मिस्टेक आई हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी मिस्टेक आप लोग शेयर करते हैं, हैपनिंग सच लगता है ये चैनल, सच बता रहे हैं, मज़ा आता है। ऐसी मिस्टेक्स आपकी कम होती रहें। और ये बुक तो हमने हमने आपको बता ही दी है, चलिए ये पुराना कमेंट है, तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ग्रेग एग्ज़ाम तक 100 की कैसे करूं, सब हो जाएगी भाई, परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी हो सकता है कि अभी थोड़ा सा मेहनत आपको और बची हो, लेकिन लगे रहिए। एग्ज़ाम बस आपका 5 मिनट का अच्छा जाना है, बस एकदम पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिए, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट मत होइएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होता है ये सब, बस मन में सोच के लेटो कि हमको करना है, करना है, करना है, सब होगा। दुनिया में ऐसा कोई काम जो हो ना सके, और दुनिया, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कतई ना हो नहीं हो सकता है। अब वो हम लोग थोड़ा अलग तरीके से दोस्ती यारी में बोल देते हैं, इसलिए हम वो बोल नहीं सकते, क्योंकि चैनल पे बोलना सही नहीं है। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि कुछ भी ऐसा काम नहीं है जो हम कर ना सकें, इतना जान लीजिए। सब हलवा है, बस आपको चम्मच से लेके खाना है, थोड़ा सा फूंक मार लेंगे तो ठंडा लगेगा, लेकिन है हलवा ही सब, ठीक है। और तो चलिए फिर, लेट ज़्यादा हो रहा है, आपके भी सोने का समय हो गया है। अच्छे से डिक्टेशन कीजिएगा, और सब्सक्राइबर लाइक शेयर करते जाइएगा, लाइक्स बहुत कम हो गई हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल।